Shall we start, ma'am? Yes. Neha, please. जी सर। श्रम की स्वर्ण पथिका पर अडिग कदम बढ़ाओ, सपनों की ऊंचाइयों को दृढ़ता से छू जाओ। तुम हो अपने भविष्य के नव दिनकर, तुम ही हो अपने सपनों के विधाता। अतः तुम थको नहीं, तुम रुको नहीं, विश्वास की शाश्वत अग्नि से संघर्ष की शक्ति को जगाओ। फल अवश्य प्राप्त होगा, बस धैर्य और विवेक से हर कदम को सजग बनाओ, हर कदम को सजग बनाओ। नमस्कार। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं नेहा त्यागी, विद्यालय प्रधानाचार्य मैम अनुपमा भारद्वाज जी, सम्माननीय अभिभावक गण, अध्यापक वृंद, प्रिय विद्यार्थियों, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आइए सर्वप्रथम परम कल्याणकारी नमोकार महामंत्र द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप यथास्थान करबद्ध हो जाएं। धन्यवाद आप सभी का। हमारे जीवन में विद्यार्थी जीवन ही सबसे मूल्यवान और निर्णायक काल होता है, जब हमारे विचार, आदतें और लक्ष्य आकार लेते हैं। यही वह समय है जब केवल अंक नहीं, बल्कि हमारा चरित्र, हमारा आत्मविश्वास, हमारा संकल्प और धैर्य भी तराशा जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम हर स्तर पर स्वयं को सशक्त बनाएं। और प्यारे बच्चों, अब आपके परीक्षा परिणाम की घड़ी भी आ गई है। याद रखिए कि जीवन में उतार चढ़ाव तो सदैव आते रहेंगे। परीक्षा में प्राप्त अंक केवल क्षणिक संकेत हैं। यह आपकी योग्यता का अंतिम मापदंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चुनौती आपके आत्मविश्वास और संकल्प को और अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। अतः इस प्रेरक अवसर पर मैं अनुरोध करती हूँ विद्यालय प्रधानाचार्य मैम अनुपमा भारद्वाज जी से कि वे विद्यार्थियों को उनके परीक्षा परिणाम और भविष्य के मार्गदर्शन हेतु अपने विचार साझा करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Neha. Thank you so much. Thank you so much. A very warm namaskar to dear parents and dear colleagues. So once again, we are on this platform to revisit, our role, our responsibilities, right, for the well-being of our children. It's very important. It's very important because we are teachers and we are parents. So everything depends on us. If we are passionate, right, about our kids, their well-being, sooner or later, it will happen. So we need
to revisit certain things, and regularly we need to ask certain questions to ourselves. Are we going in the right direction? Are we really supporting our kids? Right? Are we really guiding them in the righteous way? So when we ask these questions to ourselves, the answers which we would be getting, that will help us, to guide our kids in a better way. This is all we need to. We need to on regular basis without fail. It's a never ending process. As long as we are breathing as a parent, as a teacher, and for the well-being of our kids. This is very, very important, very important. But at times we forget. We forget. We start behaving as if we are like, owners. No, not at all. We are facilitators. Our role is to support. Our role is to provide such an environment where they are evolving, growing without any fear, without any reservations. वो हमें करना है, जैसे अभी नेहा जी ने कहा, हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट. अब देखिए, टुमारो देयर विल बी अ result of midterm examination, right? So the question is, okay, tomorrow we would be getting it. Now today, a day before, in the evening, we need to ask certain question, when the report card will be in my hand, मुझे कैसे behave करना है, right? वो क्वेश्चन मुझे अभी पूछने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी अपनी पेशेंस एज ए टीचर, as a parent, teachers also need to work very hard on themselves. The parents also need to work very hard on themselves. The two skills both of us need to learn as a parent, as a teacher. Number one is the listening, and number two is the empathy. And these two skills are very, very important for holistic view. Because if you want your children to grow holistically, then we need to empathize and we need to listen to them. Because at times we don't listen to them and we don't even empathize. We are comparing them with our time. Way back, हम जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ, जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया, नाउ द टाइम हैज टोटली चेंज. वी नीड टू नो, वी नीड टू वर्क ऑन दिस. हमें नए नए तरीके इजाद करने होंगे अपने बच्चों को हॉलिस्टिकली उनका नर्चर करने के लिए. एट टाइम्स वी आर वेरी मच रिलक्टेंट, और हम चेंज नहीं होते because we are in a fixed mindset. Because see, in school, rigorously we are working. We know the time has changed because many students are very aggressive, right? They don't have patience, resilience they don't have. They just want to take the revenge. If someone says something, they go otherwise. They are using abusive language. Some kids, not all. There are only 40, 50, who are getting aggressive. They are indulged in fightings. They are hurting others, right? They are not listening to teachers. But our job is not over when we say they are not listening to teachers. It means, and as parent also, we can't say कि हमारा बच्चा हमें सुनता नहीं है. सुनता इसलिए नहीं है कि हमने
ऐसा उसको कुछ कॉन्क्रीट वर्थवाइल या आउट ऑफ बॉक्स उसको नहीं दिया है। बच्चे सुनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगी कि हमें अपने आप को देखना है। बच्चा हमें बहुत ऑब्जर्व करता है। आई ऑलवेज से दिस, हमें बच्चा सारा दिन ऑब्जर्व कर रहा है। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे उठते हैं, हमने कौन सी सिचुएशन पे क्या कमेंट दिया, पड़ोसी से कैसे बात कर रहे हैं, रिलेटिव से कैसे बात कर रहे हैं, फोन पे क्या बात कर रहे हैं। द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग, और ये सारी चीजें उसके अंदर जा रही हैं। और जब बच्चा अदरवाइज बिहेव करता है तो हम कहते हैं मालूम नहीं ये कहां से सीख रहा है। द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम अस, बिकॉज ज्यादा समय देखिए स्कूल में है या घर पे है, 6 घंटे स्कूल में है, घर पे है, बाहर वो जाएगा तो थोड़ी सी बाहर से भी चीजें सीखता है, यस। बट लेकिन अगर स्कूल और घर हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं, पूरी पेशेंस के साथ, रिजिलियंस के साथ, एम्पैथी के साथ बच्चों को सुन रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं, इट डजंट हैपन लाइक दिस। आज बच्चे ने किसी को मारा, हम सोचे हमने समझा दिया, जो जॉब इज ओवर। नो, अगेन एंड अगेन हमें बच्चे को नए नए तरीके से उसको सेंसिटिव करना होगा। ओनली देन maybe changes will take place. So we need to have a lot of patience. अब जैसे देखिए कल का मिड टर्म एग्जाम है, रिजल्ट आएगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे के नंबर ज्यादा भी आ सकते हैं, बच्चे के कम भी आ सकते हैं, बच्चे के एवरेज भी आ सकते हैं। ये एक इंडिकेटर है। ये जो एग्जाम्स होते हैं ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि मुझे पता लगे कि अब तक मैं जर्नी में अपनी कहां तक पहुंची हूं या पहुंचा हूं। राइट, these are the indicators. This is not the final. This is a journey. ये stations है, right? So we need to take it in that spirit only. So I request, and my very humble submission to all my parents, that please don't tag. Try to understand your kids. Take it as a mission. भगवान ने आपको ये रोल दिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बच्चों को काबिल बनाना, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को पूरी तन्मयता, पूरे पैशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। बच्चे से ज्यादा हम में पेशेंस होनी चाहिए। हम नहीं सुनते हैं बच्चों को, हम क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, हम उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नहीं समझ रहे हैं। आज का वर्ल्ड यू का वर्ल्ड है, इतना ज्यादा अनसर्टन है, वॉलाटाइल है, चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतने वॉलाटाइल सिचुएशंस हैं। बच्चों के पास मोबाइल है, उस मोबाइल में बम्बार्टमेंट हो रही है इंफॉर्मेशंस की। और जब तक हमें उस बच्चे को परिवार की सपोर्ट नहीं होगी, स्कूल में टीचर्स की सपोर्ट नहीं होगी, बच्चा नहीं कर पाएगा अच्छे से। सो दैट इज वाई मैं टीचर्स से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और पेरेंट्स से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो बच्चों का रिजल्ट है उस रिजल्ट से हम आने वाला जो टाइम है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि 15 फैब से फिर एग्जाम होंगे, उसके लिए हम अपना रोड मैप तैयार करें। क्योंकि अब हमारे पास एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उस असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, मुझे देखना है कि मेरे आगे की मैं कौन से ऐसे सिस्टम इजाद करूं
कौन सी ऐसे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दूं, कौन सी ऐसी चीजें क्लास में इंट्रोड्यूस करूं ताकि मेरा बच्चा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ जाए. इफ द चाइल्ड इज एट दिस लेवल, राइट, तो आप उसको इस लेवल के लिए पहले तैयार करें. अगर आपने लेवल बहुत ज्यादा कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी. तो पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द किड्स. इट्स important. It's gone are the days when parents were not aware कि कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता था. कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है वो बोलते हुए, ये पढ़ता नहीं है, हमारे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता था. बट द टाइम हैज चेंज नाउ. टाइम हैज चेंज्ड. हमें उस वाले मोड में नहीं जाना होगा कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत कूट देते थे, हम तो उनको जवाब नहीं देते थे. नो, अब वैसा नहीं है. लेकिन यस, बच्चों को सिखानी है, अच्छी बात है, कि कहां पर उन्होंने अपनी बात को रखना है, कहां पर व्यू पॉइंट लेना है, कहां पर उनको जो है अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करना है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, इजराइल में ना एक बहुत अच्छी स्कूल्स की मैं सुन रही थी, एक कल कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें एक सज्जन बता रहे थे कि इजराइल में जब स्कूल से बच्चा घर वापस आता है अपने घर पर, तो उसकी मदर उससे एक क्वेश्चन पूछती है, कहती है कि ये बताओ बेटा, आज क्लास में सबसे इंटेलिजेंट सवाल किसने पूछा. तो अगर बच्चा कहता है कि मॉम आई आस्क्ड दैट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू नो व्हाट, वो मम्मी क्या करती है, उसको गिफ्ट देती है. इसका मतलब देखिए कि कितनी अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चनिंग विल लीड यू. राइट क्वेश्चनिंग ऐसे करते हैं हम. प्रॉम्प्ट करना हमें आना चाहिए, हमें क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए. हम क्वेश्चन नहीं करते हैं. हमारे यहाँ का ये एक बहुत बड़ी खामी है. बट नाउ in NEP, this National Education Policy, we are going under so much of training, you know. We are also learning, okay, to provide the right kind of environment where the kids are asking questions. हम घर में क्वेश्चन पूछता है तो हम कहते हैं बड़ा सवाल पूछता है, तो चुप कर. बच्चा बचपन में होता है बहुत सवाल, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. तो हम कहते हैं बड़ा दिमाग खाता है, तू बहुत क्वेश्चन पूछता है. नो, वी नीड नॉट टू. इवन पता है क्या होता है, पहले बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन करता है, करता करता करता, क्योंकि हम उसको सप्रेस कर देते हैं. ये क्या बेहूदगी, फालतू के सवाल तुम पूछ रहे हो. तो बच्चा क्या होता है, अगर उसके और क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहे होते हैं तो वो नहीं पूछता है. नेवर एवर एज ए टीचर एंड एज ए पेरेंट वी से कि ये क्या सवाल तुमने पूछ लिया. देखिए, वो जो, ऐसा तो नहीं है कि पहले सेब नहीं गिर रहे होंगे पेड़ से नीचे. अब न्यूटन को ही ये क्यों आया कि क्यों गिरा सवाल, ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं गिर रहे होंगे, आया ना. तो आपको ये भी कह सकता है, अरे ये तो नीचे ही गिरते हैं, ये क्या सवाल हुआ. उसे कि क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते. नाउ सी, बट एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, मैं फिर से ये सवाल कर रही हूं, मेरा आज आपसे है कि कल जब आप रिजल्ट लेने जाएं तो प्लीज प्लीज बहुत एक पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग मोड में होना चाहिए आपको, टीचर को भी और बच्चे को भी. टीचर से भी मेरी प्रार्थना है कि वो भी, सभी जो मेरे साथी हैं, वो भी बच्चों को उसकी जो असेसमेंट है जो अब तक हुआ है, बोलो यहां पर हो बेटा, अभी आपको और बहुत आगे जाना है,
और आगे जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए मैं आपकी टीचर और पेरेंट भी वहां पे कह रहा है, और मैं बेटे, हम आपके मम्मी पापा, हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ मेहनत करेंगे। बट हम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं पड़ोसी का बच्चे के तो पता ही नहीं है, अब तो खुद से पढ़ता रहता है, उसके मम्मी पापा को पता भी नहीं होता वो कुछ, तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर बच्चा, कोई एक बच्चा आराम से अपना चुपचाप पढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको टीचर एक बारी क्लास में बताती है, उनको समझ में आ जाता है, वो कर लेती हैं, वो घर जाके रिवाइज भी करते हैं, वो असाइनमेंट भी पूरा करते हैं और सबमिट कर देते हैं। बट देयर आर मेनी किड्स, those who don't listen in the class in spite of the fact, right, that regularly we are requesting them to listen to your teachers, right? But they don't listen. They don't even listen that we are asking them to listen. So that's why they are not listening. When you say not that, please listen to me. So they are not listening that you are asking them to listen. So this is actually the issue. So they are our kids. So they are neither they are completing the task, nor they are submitting the assignment. So this is all. So what we are supposed to do, so they need the extra push, gentle push. And sometimes, okay, we need to be firm also at times. बट पहले आप में पेशेंस होनी चाहिए। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, छह बारी हम कहने को, तो जैसे कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं कि मैम, हमें कहा जाता है आप 10 बारी सवाल पूछो, हम जवाब देंगे, लेकिन जब हम दूसरी बारी ही पूछते हैं ना, तो हमसे कहा जाता है पहली बारी क्यों नहीं सुना था। नाउ सी, हम जो कह रहे हैं, हमने बोला तो बच्चे को ये कि बेटा जितनी बारी मर्जी पूछो, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट इवन इफ द चाइल्ड इज आस्किंग सेकेंड टाइम, वी गेट इरिटेटेड। सो इसका मतलब कथनी और करनी में फर्क हो गया, एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट, वी डोंट इवन रियलाइज। सो माय डियर colleagues and parents, that please, कल जब आप रिपोर्ट कार्ड बच्चे के लेने के आए, तो मेरी आपसे प्रार्थना है बच्चों के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करें। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बारी डिस्कस करें। और एक और बात है, बच्चों के सामने पेरेंट्स और टीचर्स का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स बच्चे हैं ना वो, एंड दे वो क्या कहेंगे, टीचर्स को कुछ और बोलेंगे, पेरेंट्स को कुछ और बोलेंगे, घर जाके बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया, मैडम ने बताया नहीं, राइट? तो ये वाली चीजें जो है, हमने बहुत प्रेम पूर्वक टीचर के साथ बात करनी है। समटाइम्स व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज when I see the result of my ward and I am not very happy, क्योंकि मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं फिर हम ब्लेम गेम में जाते हैं, राइट? द पेरेंट्स आर ब्लेमिंग teachers and teachers are blaming parents because they are not supporting, and parents are blaming teachers that they are not working hard. So where are we reaching? What are we doing? We are giving the escape route to the child. और कहेंगे ठीक है, ये दोनों आपस में अड़े हुए हैं, मैं ठीक हूं जहां हूं, क्योंकि वो बच्चा है ना, अभी वो ग्रो कर रहा है। हम में भी जब हम बच्चे थे इतनी समझ नहीं थी। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। हम अपना टाइम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जैसे आज हम हैं, जो मेरी सोच है, वो मेरी सोच आज से 10 साल पहले और 20 साल पहले थी, मेरी तो नहीं थी। ओवर द इयर्स आई हैव इवॉल्व्ड। एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। जब मैं यंग थी,
तो वो वाले स्किल्स थे, उस तरीके से भी फिर ओवर द इयर्स वी आर इवॉल्विंग एंड वी हैव इवॉल्व। इसी तरीके से वो एम्पैथाइज करें हम बच्चों के साथ, विच वी डोंट डू। So my submission here is, because I'm repeating it for the sake of my kids, for their well-being, that we need to work on ourselves. जब हम अपने ऊपर काम करेंगे और बच्चा देखेगा मेरे मम्मी पापा बैठते हैं, और हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, we need to have patience. हम बड़ों में ही नहीं है, हम इतने लाउड हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम शाउट करने लगते हैं। आई हैव सीन सम फैमिलीज राइट, वेयर इवन घर में इतनी गाली गलौज हो रहा है बच्चों के साथ, राइट। तो फिर हम कहते हैं बच्चा कहाँ से सीखा। यस, आई अंडरस्टैंड, कई लोगों के घर का माहौल बहुत अच्छा है, द पेरेंट्स मेक श्योर, बट जब स्कूल में आते हैं, स्कूल में सब बैकग्राउंड्स के लोग आ रहे हैं, सोसाइटी है ना, वहां तो सभी तरीके के लोग रह रहे हैं, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो जब वो बच्चे उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है, उनको अच्छा फील नहीं होता है। फिर वो कहते हैं स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, टीचर्स इन बच्चों को कुछ नहीं बोलती हैं, बोल रही हैं, समझा रही हैं, और ये काम भी करेगा, मेरा विश्वास है 100% काम करेगा। आज लग रहा है apparently it is not working, but tomorrow I have 100% faith, because right, if you are in yourself with all integrity, if you are doing something, वो blossom करेगा ही करेगा, उसका फल आपको अच्छा। आप एफर्ट्स पे फोकस करिए, मुझे एफर्ट्स पे फोकस करना है, पूरी इंटीग्रिटी, पूरे पैशन के साथ। जितने हम एफर्ट्स डालेंगे, कहते जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होगा, राइट। तो हमें उस पे काम करना है पैशनेटली। तो कल जब बच्चों का रिजल्ट आए तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूं, बच्चे के साथ बैठूं, टीचर के साथ बहुत प्यार के साथ मैं उसको डिस्कस करूं। और टीचर से भी मेरी प्रार्थना है कि आप पेरेंट्स के साथ पूरी शिद्दत से उस रिजल्ट को डिस्कस करें। आपको ध्यान रखना है कि भगवान ने जो आपको ये रोल दिया है, टीचर बनना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल है, जीवन निर्माण का रोल है। हम जीवन निर्माता हैं, देश के निर्माता हैं। तो हमारी अप्रोच, हमारी सोच, पहले नंबर पर हमारी सोच, उस सोच से मेरी अप्रोच, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली मेरे शब्द। और ये जो मेरे शब्द हैं, ये ऐसे हों कि दूसरे के हृदय को छू जाएं, वो निर्मल हो जाए। वो इमोशनल कनेक्ट आप बनाइए। मैं पेरेंट्स और टीचर्स को प्रार्थना कर रही हूं कि इमोशनल कनेक्ट बनाए। बहुत गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कि उस तरीके से काम ना किया गया हो आपके बच्चे पे, जो आपको अपेक्षाएं थी। उसको प्रेम पूर्वक डिस्कस करिए टीचर के साथ, प्रेम पूर्वक। मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि बच्चा यहीं से सीखेगा। उसको लगेगा ये, oh, my mom and dad, they are so wonderful, beautifully they are, expressing themselves to my lovely teachers. और उसका टीचर के प्रति पूरा श्रद्धान बढ़ेगा। और टीचर भी अगर बड़े प्यार से उसको कन्वे कर रही है, बच्चा आज यहाँ है, हम मानते हैं इसमें मेहनत होगी तो ये बच्चा आगे जाएगा। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो विन विन सॉल्यूशन। द चाइल्ड वुड ऑल्सो फील मोटिवेटेड, द पेरेंट्स आर हैप्पी,
The teachers are happy. This is what we need to do. The love is the only fundamental ingredient which is working in this universe. और हमने ये छोड़ करके बाकी सारे काम करने शुरू कर दिए. We need to ask, who are we? Who am I? And what can I become? अरे मैं तो वो शक्ति पुंज हूं. I'm so beautiful from inside. I'm full of love. And I need to spread that. पूरे यूनिवर्स में. Just look around, see. The world is so beautiful. Every human being, every being rather, I would say, सब जीवों से मेरी मैत्री है. सब जीवों के प्रति मेरा कल्याण भाव है. हे प्रभु, सबका कल्याण करना, सबका मंगल करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब में प्यार हो, मोहब्बत हो. और यही इसी मोमेंट में आइए चिरागे दिल आज ही जलाएं हम. कैसी कल हवा चले कोई जानता नहीं. ये जो चिरागे दिल है, ये जो मोहब्बत का पैगाम है, ये हमें आज ही से करना है. अभी यही लम्हा है जब हम इस तरीके की बातें करते हैं. सुबह उठें और ईश्वर से बोले, मैं इस जगत में बहुत भाग्यशाली हूं. मुझे सब सपोर्ट करती है, मुझे प्यार करती है. मुझे भी सबको सपोर्ट करना है, प्यार करना है. वो जो एक हार्मनी है, उसका मैं पार्ट हूं. उससे अलग कैसे हो सकता हूं? मैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट हूं. हे प्रभु, पूरे समस्त विश्व का कल्याण हो, ये हमारी विचारधारा है. ये इंडियन फिलॉसफी है. और हम इससे कैसे दूर जा सकते हैं? और हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना टेम्पर लूज करते हैं, इरिटेट होते हैं, दूसरे को भला बुरा कहते हैं. नो, नॉट एट ऑल. मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर मार्क्स सब कुछ नहीं है. क्योंकि सब कुछ जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है. मुझे बच्चे को हर तरीके से हॉलिस्टिकली उसकी ग्रोथ में सहायक होना है. हम सहायक हैं, हम निमित्त मात्र हैं. हम निमित्त मात्र हैं. तो मेरा सभी पेरेंट्स से है, कल आप आएंगे, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में लेंगे, बच्चों से बात करिए, प्यार से बैठिए, उनको समझिए, उनको सुनिए. अपेरेंटली कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा अदरवाइज बोल रहा है, लेकिन उसको अपने फेक हेड में रखिए और फिर उसके लिए एक रास्ता तैयार करिए टीचर के साथ मिलके. तो फिर कहीं जाकर के एक खूबसूरत भविष्य तैयार करेंगे हम अपने बच्चों का. हम अपने स्कूल में भी रोज असेंबली में बोलते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रेंथ इज फ्लोइंग in my mind, in my speech, in my body. I am blessed. I have got one more day. इसका पर्पस है. लगातार जब बोलेंगे, लगातार हर रोज हम ऐसे हो जाएंगे. अपेरेंटली लगता है अभी नहीं हुआ. तो ये जो अग्रेशन है, ये कहीं ना कहीं बच्चा हमसे सीख रहा है. लाउड है ना, हम बहुत लाउड है. बात बात पे हम गुस्सा करते हैं, बात बात पे दूसरे को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. वहां से बच्चा सीखता है. तो यहां पर हमें अपने ऊपर काम करना होगा. आप देखिए, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप स्वयं भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और बच्चे का भविष्य भी बहुत खूबसूरती से संवार देंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और प्रभु से प्रार्थना करती हूं, पूरे जगत का कल्याण हो, हमें परमात्मा सद्बुद्धि दे
और हम अपने रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे जुनून के साथ निभाएं और खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। कल के लिए आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही सहजता से हम सभी का पथ प्रदर्शन किया है। हम सब अवश्य इन विचारों को आत्मसात कर अपने अनुभवों से सीख लेकर आत्म मूल्यांकन कर नए जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ प्रयास करता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए अब समय है धन्यवाद ज्ञापन का। सर्वप्रथम हम इंद्रधनुषी रंगों से सज्जित इस सुंदर जग को जीवंत करने वाले परम पिता परमेश्वर तथा जीवन दायिनी मां वसुंधरा को नमन करते हैं। हम कृतार्थ हैं गुरु वल्लभ एवं उनकी सुशिष्या साध्वी मृगावती श्री जी महाराज साहब के, जिन्होंने हमें सदैव सन्मार्ग, स्वाध्याय एवं सत्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया है। आज भी वे हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं विद्यालय प्रधानाचार्य मैम अनुपमा भारद्वाज जी का, जिनका कुशल नेतृत्व व सफल मार्गदर्शन हमारे अंदर आत्मविश्वास, उत्साह और नव चेतना का समावेश करता है। हम आभारी हैं सभी अभिभावकों के जो अपना मूल्यवान समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सभी सहयोगियों, प्यारे विद्यार्थियों व फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी दर्शकों का। और अंत में चंद पंक्तियों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हे विद्यार्थियों, तुम राष्ट्र के भविष्य की उजली किरण हो। तुम आशाओं की नई सुबह की सुनहरी उमंग हो। इसलिए तुम चलो विजय पथ पर दृढ़ और सशक्त बनकर, हर कदम में साहस, हर निर्णय में प्रज्ञा का प्रकाश भरकर। सपनों की रोशनी तुम पर नित छाई रहेगी। तुम्हें कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी, तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। धन्यवाद।